Good afternoon, student. In previous video, we had discussed about our first poem, and that first poem is past, present, and future. Okay, we had discussed about that point in detail. Okay, that poet asked some question to that small children how to miss about that present, miss past, present, and future. And that little child also told a correct and proper answer of that question easily. Okay, this is very interesting story about any person or that child about present, miss past, present, and future. Okay, very nice story, very nice poem. Okay, so listen, we are going to start our second poem, and that poem name is In Time of Silver Rain, means 1.3. Actually, that 1.2 remaining that point we will discuss on that point in next video. But now we are going to start our 1.3 In Time of Silver Rain. Okay, this also is very interesting poem. This is also interesting. This is interesting poem also. Okay, in this poem describe about a rain. You know about that a rain, in time of silver rain. Okay, a rain is very important for our earth, a plant, of atmosphere, and human, animals, birds. Okay, so without a rain or without water we cannot live on the earth. That's why this rain is very important in our life. Okay, you know very well what is the importance of a rain in your life. Okay, so that poem said something about that, means some important information about rain, and that writer is Langston Hall. Okay, this poem is written by Langston Hall. Okay, so this is very good writer, poet. Okay, we will discuss about that poet. Linguist Hughes was an American writer. This is American writer, not Indian writer. Okay, and activities who won many awards and honors for his work. He is very good person, and when he wrote, means many language or activities that time, uh, he won many award or honor for his work because his work is very nice. He started a new style of writing poetry in which rhythm and spontaneous expression are important. Okay, so some points are very important in that poem when someone write that poem. Okay, so uh, that writer found a new method of or new style of writing poetry. Okay, so this is a very great person. In this poem, he described who rain bring joy and life. Okay, in this poem, that writer describe how rain bring joy and life. Okay, means you know about that rain is very important in our life. Okay, and that writer had written some information about that rain, how to important that rain in our life. Okay, let us start our poem 1.3. Okay, in time of silver.
In time of silver rain, the earth put forth new life again. Green grass grew, and flowers lift their heads. And over all the plain the wonder spread of life, of life, of life. Okay, in this paragraph, that paragraph said to us that silver words used for rain words, and this is a one type of adjective. Okay, and in time of silver rain the earth. Okay, this is the actually this is the time of rain, and that silver words told us this rain is very important. Okay, so put forth a new life again, green grasses grow. You know about that, without life cannot grow a proper, cannot grow any plant on the earth. Okay, that's why we must help, means that tree rain is very important for animals lives or human life also. Okay, like that, puts forth a new life again, green grass grow. Just consider, there is no water, and after that all green grasses is not a good condition. When rain falls on the earth, that time that green grasses grow very, means good condition, grow very quickly also. Okay, so and flowers lift their heads. Without water, without rain, that flower cannot lift their heads. Okay, that's why that writer told some information about that flower also. Okay, and over all the plain the wonder spread all life, of life, of life, of life. And with the help of this rain, that green grass or flower or any plant or small bushes uh, grow properly, and all, means that atmosphere is become a very good condition. Okay, good. And overall the plain wonder spread of life, of life, of life. मीन्स यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में हमको ये कहा है कि इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन द अर्थ, मीन्स ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर ये जो सिल्वर रेन गिरा, यहाँ पर इन जो प्रीपोजिशन है, टाइम नाउन है और प्रीपोजिशन है, सिल्वर एडजेक्टिव है, रेन नाउन है. Silver words tell us some information about that rain. That's why this called adjective, means silver adjective है. अब यहाँ पर हमको क्या कहा गया है कि इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन द अर्थ, मीन्स यहाँ पर जो सिल्वर रेन गिर रहा है अर्थ पर. ओके, और ये टाइम है सिल्वर रेन का. तो पुट फोर्थ अ न्यू लाइफ अगेन, ग्रीन ग्रास ग्रो. मीन्स यहाँ पर जो पुट्स फोर्थ है, इसका मतलब होता है डेवलप, प्रोग्रेस. ओके, तो जब ग्रीन ग्रास, इसमें क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलप हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर बारिश अच्छी तरह हो चुकी है. अच्छी बारिश होने के बाद जो ग्रीन ग्रास है वो अच्छी तरह बढ़ सकते हैं, और विदाउट वाटर दैट दे कैनॉट ग्रो प्रॉपरली. ओके, मीन्स यहाँ पर बारिश गिरी है, सिल्वर रेन गिरा, तो जो फ्लावर है वो भी अपने जो हेड्स होते हैं वो लिफ्ट करते हैं, मीन्स अच्छी तरह वो प्रॉपर ग्रो होते हैं. एंड ओवर ऑल द प्लेन द वंडर स्प्रेड ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ. मीन्स यहाँ पर देखो पूरी तरह जो धरती है हरी भरी सी दिख रही है. यहाँ पर पत्ते ही पत्ते मीन्स आ गए हैं. वहाँ पर पूरे की पूरी जो यहाँ पर प्लेन जो ग्राउंड है, वहाँ पर हरे भरे जो स्मॉल बाइट जो स्मॉल प्लांट है वो आ चुके हैं. तो धरती बहुत अच्छी दिख रही, ऐसा डिस्क्राइब इस फर्स्ट, मीन्स ऐसा ये फर्स्ट पैराग्राफ कह रहे हैं हमें. अब सेकंड पैराग्राफ, second stanza. In time of silver rain, the butterflies lift silken wings to catch a rainbow. Okay, and trees put forth new leaves to sing, enjoy beneath the sky. Okay, as down roadway, passing boys and girls go singing too.
इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन व्हेन स्प्रिंग एंड लाइफ आर न्यू। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ था। अब देखो सेकंड पैराग्राफ के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन द बटरफ्लाइज लिफ्ट सिल्कन विंग्स टू कैच अ रेनबो क्राई। ओके, सो लिसन in after rain falls on the earth, after that means when that rain is falling on the earth, that time the butterflies lift silken wings and to catch a rainbow. He tried to catch a rainbow. Okay, because this means because this very in this condition that butterflies go here and there, fly go here and there. Okay, and to catch a rainbow cry. Okay, means यहाँ पर वहाँ पर इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन द बटरफ्लाइज लिफ्ट सिल्कन विंग्स। सिल्कन का मतलब क्या होता है? लाइक सिल्क। ओके, तो सिल्कन वर्ड्स एडजेक्टिव है, विंग्स के बारे में कुछ बता रहा है। ओके, लिफ्ट सिल्कन विंग्स, इसके ये बता रहा है कि ये जो इन सिल्वर जो रेन है वहाँ पर क्या होता है, बटरफ्लाई जो है वो सिल्कन विंग्स, उनकी जो सिल्कन विंग्स है वो लिफ्ट करती है टू कैच। ऐसा लगता है मानो रेनबो को वो क्या कर रही है, कैच कर रही है। एंड ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स टू सिंग इन जॉय बीनेथ द स्काई। As down the roadway passing boys and girls go singing too। मीन्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको कहा है कि ये जो ट्रीज है, ट्रीज पुट फॉर्थ अ न्यू लीव्स टू सिंग एंजॉय बीनेथ द स्काई। एज डाउन रोडवे पासिंग बॉयज एंड गर्ल्स गो सिंगिंग। मीन्स यहाँ पर जो नए नए पत्ते जो आ रहे हैं वो नया जीवन ला रहे हैं, जो नए सिंगिंग मीन्स कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। तो वहाँ पर इन जॉय बीनेथ द स्काई, बीनेथ द स्काई मीन्स स्काई के नीचे बहुत सारा जॉय वहाँ पर लाए हैं। ओके, सो पासिंग बॉयज एंड गर्ल्स गो सिंगिंग टू। ओके, मीन्स यहाँ पर जो हरी भरी पत्तियाँ हैं, जो पौधे हैं, वो तो गाना गा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। मीन्स उधर का जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है, पर वहाँ से गुजरते हुए जो बॉयज़ और गर्ल्स है वो भी क्या कर रहे हैं, गाना गाते हुए वहाँ पर मीन्स वहाँ से जा रहे हैं। ओके, पासिंग बॉयज एंड गर्ल्स गो सिंगिंग टू मीन्स वहाँ पर मीन्स दैट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज सिंगिंग पासिंग फ्रॉम दैट रोड्स। ओके, पासिंग रोडवे पासिंग बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, सो वहाँ पर जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो भी क्या कर रहे हैं, गाना गाते हुए जा रहे हैं। इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन व्हेन स्प्रिंग एंड लाइफ आर न्यू। मीन्स वहाँ पर जो इन टाइम ऑफ सिल्वर है वहाँ पर व्हेन मीन्स ये कब होता है, स्प्रिंग के टाइम में, एंड लाइफ आर न्यू मीन्स वहाँ पर जो हरे भरे पत्ते हैं, जो रेन अभी अभी मीन्स गिर रहा है, तो अभी जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा है। स्प्रिंग में भी ऐसा होता है। एंड लाइफ आर न्यू, जो वहाँ पर पूरी की पूरी जो लाइफ है वो न्यू हो चुकी है। जहाँ पर देखो बारिश गिरने के पहले, ओके, और बारिश गिरने के बाद देयर इज वेरी डिफरेंट कंडीशन बिटवीन दैट टू सीजन। ओके, सो बारिश गिरने के बाद हमें आजू बाजू में मीन्स वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो सभी के लिए, दिस एटमॉस्फेयर इज वेरी गुड फॉर एनिमल, प्लांट और एनी बर्ड्स। ओके, सो उसी तरह जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, न्यू लाइफ वहाँ पर हो चुकी है। इसी तरह हमको यहाँ पर ये पोएम दी है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन विथ आंसर। ओके, listen, this is question with answer. We will discuss about question with answer.
Okay. Let us start. Our first question is, first of all, we will discuss about hard work. Puts forth means develops or produces. Silken means like a silk. Don't forget that hard words, because hard words will come in exam. Okay, मीन्स यहाँ पर जो हार्ड वर्ड्स दिए हैं वो अच्छी तरह अपने नोटबुक में लिख लो। ये एग्जाम में आ सकते हैं, और जितने भी मैं अभी क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहा हूँ एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, मे भी आ सकते हैं। आपको अच्छी तरह लिखना है और अच्छी तरह वो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छी तरह रीड करने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन्स इन द पोएम। ओके, पोएम के जो लास्ट में हमको कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हैं वो कौन कौन से हैं? फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, ऐसा आपको कहा है। ओके, तो चलो हम राइमिंग वर्ड्स देखते हैं क्या है। रेन अगेन, फर्स्ट राइमिंग वर्ड्स इज रेन एंड रेन अगेन। आफ्टर दैट अगेन प्ले। ओके, heads spreads, wings sings, cry sky, to new. Okay, our second question is, फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, जो नहीं दिए वो आपको एक्टिविटीज़ कुछ है, डायलॉग कुछ है, तो आपको उसकी एग्जाम में ज़रूरत नहीं है और आप डिस्कस भी कर सकते हैं, अपने मन से भी आप वो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिल इन द फॉलोइंग मीन्स आपको ही वो क्वेश्चन आंसर करने हैं। आप देखो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ रेफरेंस टू द पोएम। इन द टाइम ऑफ रेन, व्हेन स्प्रिंग एंड लाइफ आर डैश। So your answer is new. In the time of rain, when spring and life are new. Your answer is new. The butterflies left silken. Okay. So butterflies left silken wings to catch a rainbow. तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? silken और wings to catch a, किसको पकड़ रहे हो? रेनबो को। तो यहाँ पर रेनबो आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद रेनबो क्राई एंड ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स टू सिंग इन जॉय। यहाँ पर क्या वर्ड्स आएगा? फोर्थ न्यू वर्ड्स आ जाएगा, न्यू लीव्स टू सिंग इन जॉय। बीनेथ द स्काई एज पासिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू गो सिंगिंग डाउन द रोड वे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? गो वर्ड से यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो फिर से एक बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यू, उसके बाद मीन्स एंड लाइफ आर न्यू, उसके बाद कैच टू रेन, यहाँ पर लेफ्ट सिल्कन। ओके, उसके बाद पुट फोर्थ न्यू, लिव टू सिंग इन जॉय। बीनेथ द स्काई एज पासिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू गो सिंगिंग डाउन द रोडवे। अभी आपको क्या करना है, मैं जो भी क्वेश्चन आंसर आपको दे रहा हूँ आपको ये वीडियो पॉज करके ये पूरे के पूरे लिखना है। हार्ड वर्ड्स लिखना है, राइमिंग वर्ड्स लिखना है, ये फिल इन द ब्लैंक लिखना है। ओके, जो जितने भी अभी इसके बाद में दूंगा वो भी आपको क्या करना है? लिखना है। मे बी वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थिंक एंड आंसर। Is the poet talking about heavy rain in the rainy season or rain that has come after a long time? So your answer is, मिस वो जो पोएट है वो आफ्टर लॉन्ग टाइम आने वाला जो रेनी सीजन है उसके बारे में बोल रहा है या अबाउट हेवी रेन इसके बारे में बोल रहा है? द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ रेन दैट हैज कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओके, हेवी रेन के बारे में बोल रहा है क्या वो पोएट? नहीं। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो योर आंसर इज आफ्टर लॉन्ग टाइम। दिस इज द योर आंसर। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट रेन दैट हैज कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम।
Okay. Our next question, are the boys and girls happy that it is raining? मीन्स यहाँ पर रेनिंग हो रही है तो वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज हैप्पी है या नहीं? दिस इज द वर्बल क्वेश्चन because that sentence, that question start from helping verb. That's why this is the verbal question. Okay, so your answer is yes, they are happy because in last paragraph told us that the boys and girls are very happy and they are passing from that roadways to singing a song. Okay, मीन्स वहाँ पर हमको जो पैराग्राफ सेकंड है वो बता रहा है कि वहाँ पर जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो गाना गाते हुए बारिश होने के बाद किसी को भी लगता है कि अब हमें गाना गाना चाहिए, थोड़ा कुछ गाना गाते भी हैं। ओके, और वैसा एटमॉस्फेयर होता है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। जो फार्मर होते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी जो मीन्स फार्मर जो सभी एनिमल है और प्लांट है, बर्ड्स है, उनको बारिश अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है, तो वहाँ पर वो हैप्पी होए। तो यस, दे आर हैप्पी। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, यहाँ पर लैंग्वेज स्टडी में दिया है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। देखो लैंग्वेज स्टडी में क्या करना है, फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। एलिट्रेशन, यहाँ पर हमको इलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो वर्ड्स जो साउंड बार बार रिपीट हुए हैं उसे हम इलिट्रेशन कहते हैं। ग्रीन ग्रास ग्रो। ओके, ग्रीन ग्रास ग्रो। तो वहाँ पर जी, यहाँ पर ग्री में जी वर्ड्स रिपीट आया है, ग्रास जी, ग्रो जी, ऐसे रिपीट यहाँ पर वर्ड्स आ। देखो यहाँ पर इलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो वर्ड्स है एक ही वर्ड्स बार बार आता है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी बार बार होता है, उसे ही हम इलिट्रेशन कहते हैं। जो इलिट्रेशन जो वर्ड्स है, जो इलिट्रेशन है उसके और भी कुछ इलिट्रेशन जैसे कुछ मीन्स जो वर्ड्स है वहाँ पर इलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो वर्ड्स बार बार आते हैं और उसे एक ही वर्ड्स सेंटेंस में बार बार आते हैं, जैसे कि ग्रीन ग्रास ग्रो। इसमें जी जी क्या आया है, बार बार आ चुका है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी वहाँ ऊपर सेम हुआ है। फाइंड सम मोर एग्जाम्पल ऑफ इलिट्रेशन। ओके, तो इलिट्रेशन के और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। लाउड ऑफ लर्निंग रिंग हीज हेड। यहाँ पर यल और यहाँ पर यल क्या हुआ है, रिपीट आ चुका है, तो यहाँ पर इलिट्रेशन है। नेक्स्ट, आई स्पेंड अ स्लीपलेस साइलेंट नाइट सराउंडेड बाय वरीज। यहाँ पर यस और सराउंडेड का यस रिपीट आ चुका है। अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्ट्रॉन्ग ऑफ फेट। तो यहाँ पर भी यस रिपीट आ चुका है, तो यहाँ पर कौन सा है, एलिट्रेशन है। तो इस तरह हमने अभी आज मीन्स यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग मीन्स our first poem had finished in previous video, but in this video we have completed our 1.3 in time of silver rain. Okay, we will discuss next chapter in next video, but there is one instruction for you. You have to prepare all questions answer for our exam, means our first for our first term exam. Okay, so when I gave to you a proper question answer of that particular chapter, you have to write that question answer in your notebook and prepare that and read that
क्वेश्चन आंसर अगेन एंड अगेन। मीन्स यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह रीड करने हैं और अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं हमारे फर्स्ट टर्म के लिए। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हो। और इसके पहले भी कुछ बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं मीन्स जो जिसको एक बार में ही समझ में आता है, जो मैंने पढ़ाया है सभी को समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इजी वर्ड्स में आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी आपके डाउट है मैंने पहले ही एटम मीन्स क्लियर किया है। मीन्स वहाँ पर जो एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पर आपके पूरे के पूरे वहाँ पर डाउट क्लियर, मीन्स वहाँ पर वो जो पोएम है चैप्टर है वो क्लियर हो जाती है, नो डाउट। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको दे रहा हूँ वो अच्छी तरह रीड करना है। रीड दिस क्वेश्चन आंसर, रिपीट अगेन एंड अगेन। ओके, वी विल सी आवर नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियोज। ओके।